3. السلام علیکم. آج ہم ڈائبٹیز کے بارے میں لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر وقاص شاہد. انہوں نے کافی ساری کمپنیز کے پروجیکٹ پہ کام کیا ہے ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ. تو آئیں ملتے ہیں ڈاکٹر وقاص شاہد سے. السلام علیکم. اچھا, آپ کائنڈلی ذرا تھوڑا ڈائبٹیز کے بارے میں ہمیں بتائیں گے جنرلی. اچھا, ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسانی خون کے اندر جو گلوکوز ہوتا ہے اس کی مقدار نارمل لیول سے زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ گلوکوز انسانی جسم استعمال نہیں کر پاتا اور ہم اس پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ اس مریض کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے. تو آگے چلنے سے پہلے میں اتنا بتانا چاہوں کہ گلوکوز ہے کیا چیز. ٹھیک ہے, گلوکوز جو ہوتا ہے یہ بنیادی چیز ہے جسم کے لیے کہ جو کہ جسم طاقت کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے تاکہ ہم روزمرہ کے جو اپنے کام ہیں اس کو سر انجام دے سکیں. جس طرح ایک گھر کو بنانے کے لیے اینٹوں کی, سریے کی, سیمنٹ کی, ریت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں کسی بھی عمارت کو بنانے کے لیے. اسی طرح انسانی جسم میں بھی کچھ بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں جس میں گلوکوز, ٹھیک ہے, پروٹین, فیٹ جس کو پروٹین ہے, ہیم, چربی اور اسی طرح کچھ وائٹامنس جس کو ہم کہتے ہیں وہ ضرورت ہوتے ہیں جو کہ انسانی جسم کی تخلیق اس کے بلڈ اپ کے لیے ضروری ہوتے ہیں. انہی میں گلوکوز جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ عنصر ہوتا ہے جو کہ ہماری جسم اس کو استعمال کرتا ہے اور ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں. اس میں کائنڈلی ذرا آپ پرسنٹیج پاکستان میں, یورپ اور ایج اور رسک فیکٹرز کے بارے میں تھوڑا سا گائڈ کر دیں. اچھا, اس میں ریسنٹ یہ دیکھا جائے تو پاکستان جو تھا پہلے تیسرے چوتھے نمبر پہ تھا ڈائبٹیز کے حوالے سے دنیا میں, لیکن جو اکارڈنگ ٹو جو اسٹیٹس ہے ورلڈ اسٹیٹسٹکس کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق اب پاکستان نمبر 1 پہ ہے ڈائبٹیز کے. دوسرے نمبر پہ کویت آ رہا ہے, تیسرے نمبر پہ مصر ہے. پاکستان میں جو پریولنس پھیلا ہوا ہے جو شوگر کا وہ اب 30.4% تک پہنچ چکا ہے. اس سے پہلے یہ 24 تھا پچھلے سال, لیکن اس میں پریولنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. پہلے 4 میں سے 1 پاکستانی کے اندر, 3 میں سے 1 پاکستانی کے اندر شوگر ہے اور ان کو معلوم ہی نہیں ہے. ہماری کل 3.5 کروڑ کے لگ بھگ جو آبادی ہے وہ شوگر کا شکار ہے. ٹھیک ہے, ان کو ڈائبٹیز لاحق ہے. اب یہ ڈائبٹیز جو ہے عموماً جو ہے یہ ان ممالک میں کیوں پھیلی ہے, اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو کہ ہم آگے چل کے جو ہے نا میں اس کے حوالے سے بتاؤں. اچھا, اس میں کائنڈلی آپ کو بتا دیں ڈائبٹیز جو کہ شوگر لیمن لینگویج میں, یہ کون سی ایج کو زیادہ ٹارگٹ کر رہی ہے؟ اچھا, اب شوگر جو ہے عموماً اس کی مختلف اقسام ہیں. یہ عموماً بچوں میں سے لے کے بڑوں تک اس کی جو یہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی پھر آگے اقسام آ جاتی ہیں. ٹین ایجرز میں کس ٹائپ کی ہوتی ہے, پھر آگے بڑے عمر کے لوگوں میں کون سی ہوتی ہے, حمل کے دوران بھی شوگر ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے, تو وہ اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. اور رسک فیکٹرز کون سے ہیں؟ اچھا, اب ایسے کون سے لوگ ہیں جن میں خطرات جو ہیں وہ شوگر کے ہونے کے بہت ہوتے ہیں. ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ فزیکلی ان ایکٹیو ہیں, جو ورزش وغیرہ نہیں کرتے, ان کا کام کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک 6 بجے تک اپنا آفس میں بیٹھ کے کام کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد گھر پہ آ کر لیٹ جاتے ہیں, کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ عموماً خطرے میں ہیں کہ ان کے فزیکل ایکٹیویٹی کم ہے جس کی وجہ سے یہ ان کے رسک میں بڑھ جائے. اور اسی طرح ایسی خواتین جن کو جو حمل جن کو ہوا ہوا ہے اور وہ حمل میں ہیں تو ان کے اندر بھی یہ خطرات بڑھ جاتے ہیں کہ وہ فزیکل ان ایکٹیو ہیں. اور دوسرا ہے وہ اپنی خوراک کے اوپر توجہ نہیں دیتے. تیسرا ہو جاتا ہے جو شوگر کے موسٹ جو کلپریٹ چیز ہے یا جو وجہ ہے شوگر کی, وہ یہ ہے کہ اوبیسٹی, کہ انسان کا جو ویٹ ہے وہ اس کے نارمل قد کے لحاظ سے اس کا زیادہ ہو جانا. اوبیسٹی جو دنیا میں جو ہے سب سے بڑی وجہ ہے شوگر کی. اور اسی طرح آپ کی جو ہے انیڈیکویٹ ڈائٹ وغیرہ ہوگی, لیک آف ایجوکیشن, یہ چیزیں بھی آپ کو رسک فیکٹر کی طرف لے کے آتی ہیں کہ آپ کو شوگر وغیرہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پیرنٹس میں, آپ کے بہن بھائیوں میں شوگر ہے, فیملی ہسٹری میں جس کو ہم کہتے ہیں اگر شوگر ہے تو آپ میں بھی شوگر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. صحیح. تو اب جب شوگر کی بات آپ کر ہی رہے ہیں تو اس میں کیا سمپٹمز ہیں
ख़तरे में जाना चाहिए, या मतलब बंदा कह ले कि हाँ अब हो सकता है ये शुगर भी हो सकती है, तो उसके सिम्टम्स के बारे में अगर अच्छा, शुगर की अलामात ये होती हैं कि ऐसा शख्स जिसको जो ये शिकायत करता है कि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और मैं रात को 2 से 3 बार उठ के मुझे यूरिनेशन होती है, पेशाब की हाजत होती है, तो और इसके अलावा ये है कि उसको कमज़ोरी, गैर ज़रूरी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, और इसके अलावा उसका वेट जो है वो गैर ज़रूरी तौर पे या अनयूजुअली गैर मामूली तौर पर उसका वेट जो है कम कर जाता है। ये कुछ अलामात हैं जो कि इंडिकेट कर रही होते हैं कि इस शख्स को डायबिटीज़ का ख़तरा है। तो ये कुछ मेजर अलामात हैं जो अगर आपको ये हैं तो आपको डायरेक्टली ये है कि आपने किसी भी फिजिशियन को, कंसल्टेंट से रुजू करना चाहिए ताकि वो आपको ऐसे टेस्ट लिख के दें जिससे आपकी शुगर जो है वो तशख़ीस हो सके। सही। तो इसमें टेस्ट के बारे में बता दें, कौन से टेस्ट हैं जो कि ज़रूरी हैं, या कौन से टेस्ट करवाएं लोग चेक करने के लिए कि आया उनको शुगर है भी है या सिर्फ वो शक की बुनियाद पे। अच्छा, आप ये टेस्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ कि शुगर के लेवल्स कितने होते हैं, जी ताकि आवाम को, लोगों को ये पता हो कि अगर इन लेवल से ज़्यादा अगर आपकी शुगर ब्लड लेवल जा रहे हैं तो ये एक साइन है। जिस तरह नॉर्मली फास्टिंग शुगर जो है, ठीक है, जो खाली पेट शुगर जो हम 8 से 10 घंटे कुछ खाए पिए बिना गुजारते हैं, उसके बाद जो शुगर हम चेक करते हैं उसको हम कहते हैं फास्टिंग शुगर। अगर वो शुगर 100 से कम है तो वो नार्मल है। अगर वो 100 से लेके 126 के दरमियान में आता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो कि यूनिट है जो कि इसको पे नापा जाता है, जिसमें उसके दरमियान में आती है तो उसका मतलब है ये प्री डायबिटीज़ स्टेज में है, मतलब उसको शुगर नहीं है लेकिन वो ख़तरे में है। अगर वो 126 से ऊपर आता है तो उसका मतलब है वो कन्फर्म्ड है। ये होता है फास्टिंग शुगर। ये नाश्ते से पहले की हाँ, बात जो कर खाली रहे हैं। पेट मतलब जो हाँ आपने 8 से 10 घंटे बगैर कुछ खाने पिए बिना बगैर गुजारे। जी जी। इसके साथ ही अगर आप खाने के 2 घंटे के बाद जो शुगर चेक करते हैं, उसकी जो नॉर्मल लेवल्स है वो 140 से नीचे, 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए, जो मशीन जब आप चेक करते हैं तो उसको कम आना चाहिए उससे। लेकिन अगर वो 140 से 200 के दरमियान में आता है तो उसका मतलब है कि ये ऐसा शख्स जो वो प्री डायबिटीज़ की स्टेज में है, वो ख़तरे में, उसको शुगर नहीं हुई लेकिन वो बॉर्डर पे खड़ा है ख़तरे में। सही। अगर उसकी 200 से ऊपर आती है मुसलसल चेक करने पे तो उसका मतलब है वो डायबिटिक है, उसको कंफर्म है कि उसको शुगर हो गई है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए अब हम आते हैं कि कुछ टेस्ट हैं जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो कि इस में माहिर होता है, वो कुछ टेस्ट लिख के देता है पेशेंट को जिसकी बुनियाद पे तशखीस मुमकिन होती है। अब वो टेस्ट क्या है कि अमूमन हम एक होता है कि ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं फ्रॉम ग्लूकोमीटर, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमारी हाथ की उंगलियां, इससे हम जो है ना शुगर को चेक करते हैं, ठीक है। इसमें अमूमन ये होता है कि हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आप अपनी फास्टिंग शुगर चेक करें, ठीक है। फास्टिंग शुगर होती है वो एक क्लियरली इंडिकेट करती है कि पेशेंट शुगर क्या उसने कुछ खाया पिया नहीं होता, जी तो उसमें डॉक्टर बताता है आप 2 से 3 दिन मुसलसल अपनी फास्टिंग शुगर चेक करके लिख रहे हैं, साथ ही किसी भी खाने के बाद, जैसा नाश्ते के बाद, कभी दोपहर खाने के 2 घंटे बाद और रात खाने के बाद शुगर चेक करके उसका रिकॉर्ड रखें। उसके अलावा डॉक्टर जो है वो आपको कुछ टेस्ट लिख के देगा जिसमें आ जाता है HbA1c, इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट, जो कि शुगर का 3 महीने का एक टेस्ट होता है, वो एक एवरेज बता रहा होता है, ठीक है। ये खून के अंदर जो आपकी शुगर है उसके लेवल्स के तनासब की एक एवरेज बता देता है, वो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। इसी तरह आपके गुर्दे के हवाले से RFDs, फिर जिगर के हवाले से LFTs वगैरह, फिर इसी तरह विटामिन D के लेवल्स भी चेक करवा सकता है। फिर इसी तरह जो है ये आपके ये मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो कि ये कॉमन जो टेस्ट हैं ये करवा के तो डॉक्टर कोशिश करता है कि पेशेंट की डिजीज़ को तशखीस किया जा सके। सही। तो अब आगे आ जाते हैं, तशख़ीस की जब बात कर रहे हैं तो इसमें डायबिटीज़ की टाइप्स कौन कौन सी हैं, कितनी टाइप्स हैं, और वो किस एज को एड्रेस कर रही होती हैं, या किस तरह के मसाइल किस एज में आ रहे होते हैं। अमूमन जो डायबिटीज़ की जो टाइप्स हैं उसको हम 3 में कैटेगराइज करते हैं मेजरली। टाइप 1, टाइप 2 गेस्टेशन डायबिटीज़। टाइप 1 होती है डायबिटीज़ की अव्वल किस्म, उसमें ये होता है कि पेशेंट ये अमूमन टीनेजर्स जो होते हैं इनको ये लाक होती है। इसमें ये होता है कि हमारा जिस्म का क़ुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो हमारे लबे के अगेंस्ट काम करना शुरू, उसके खिलाफ शुरू कर देता है, लबे को नुकसान पहुँचाता है।
लबलबे का काम होता है इंसुलिन को बनाना। इंसुलिन एक हार्मोन है, हाँ जी, ठीक है। तो वो हार्मोन जब वो इंसुलिन लबलबा डैमेज होता है तो जो जिस्म है हमारा लबलबा उसकी इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और वो जब इंसुलिन नहीं बनाता, बिल्कुल बनाना छोड़ देता, ख़त्म हो जाता है, तो पेशेंट को हम कहते हैं कि टाइप 1 या शुगर की पहली किस्म का शिकार है, जिसको हम टाइप 1 कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है, और ये अमूमन टीनेजर्स में ये जी, होती है। इसी तरह टाइप 2 डायबिटीज़ आ जाती है आपकी। शुगर की दोयम किस्म जो होती है, ये अमूमन 30 से ऊपर के लोगों में होता है। अमूमन ये 40 से 45 साल के ऊपर के लोगों में 30 से अबव, और ज़्यादातर मेजॉरिटी 40 से ऊपर के लोगों में ये चीज़ आती है। और सही, इसमें क्या होता है कि आपका लबलबा इंसुलिन बना रहा होता है, लेकिन इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस का मुराद ये है कि इंसुलिन को खून में मज़ामत मिलना शुरू हो जाती है। इंसुलिन जो है वो सही तरह काम नहीं कर पाती। उसका काम होता है इंसुलिन का कि आपकी ग्लूकोज को, शक्कर को जो आप खुराक में से ले रहे हैं, इसको पकड़ के आपके खुलियों में लेके जाना। खुलियों में लेके जाती है तो उससे क्या हो जाता है कि उनको ताकत मिलती है, आपके अज़ा सही तरह काम करते हैं। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो उसकी वजह से वो सही तरह काम नहीं कर पाती, तो आपका ग्लूकोज, शक्कर जो है वो आपके अज़ा तक नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है आपके सेल। आपको गैर ज़रूरी जो थकावट और कमज़ोरी जिसकी मैं बात कर रहा था अलामात में, वो चीज़ आना शुरू हो जाती है। सही, तो ये होती है टाइप, जिसमें क्या होता है लबलबा इंसुलिन बना रहा होता है, लेकिन इतनी मिकदार में नहीं बना रहा होता कि वो आपकी ज़रूरत को पूरी कर पाए। जी, एग्जॉस्ट हो चुका होता है, आपका लबलबा थक चुका होता है। जी, सही। इसी अब तरह जी, जी, तीसरी डायबिटीज़ की जो फॉर्म थी गेस्टेशनल। हाँ जी, गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है अमूमन ये हमल के दौरान होती है। जी, ये अमूमन जो है 24वें से लेकर 28वें हफ्ते में ये होती है ख़वातीन के अंदर हमल के दौरान। इसमें जो ख़वातीन के जिस्म में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके इंसुलिन के काम को, एफिशिएंसी को थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इस शुगर के लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये शुगर के लेवल्स ये बढ़ना शुरू, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि इन ख़वातीन में ब्लड प्रेशर का आर्जा भी लाहक होने का खर्चा होता है, जी, जिसकी वजह से बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है, सही, ठीक है। और इसमें ये होता है प्री मेच्योर बर्थ होने का खर्चा भी होता है। सही, अगर वो प्री मेच्योर या वक्त से पहले अगर ये हो जाए तो उसकी वजह से ये होता है कि पेशेंट जो बच्चा होता है उसकी को सांस लेने में दुश्वारी होती है, जो कि फिर अल्टीमेटली उसके कॉम्प्लिकेशंस बनती है और डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं बच्चे के। और इसी तरह पेशेंट अगर इसको कंट्रोल नहीं करता ड्यूरिंग गेस्टेशन, अपने हमल के दौरान डायबिटीज़ को, तो इसको परमानेंट डायबिटीज़ होने के खदशात भी इसके बढ़ जाते हैं इन द फ्यूचर। सही। इसमें अब आपने एक वर्ड यूज़ किया है परमानेंट। जी जी। तो अब जब डायबिटीज़ की टाइप्स हैं, ये आगे चल के प्री डायबिटीज़ है, फिर डायबिटीज़ है, आगे चल के इसकी कॉम्प्लिकेशंस, इसके मेजर माइनर, ये क्या साइड इफ़ेक्ट्स ला सकती है और क्या मसाइल आगे की ज़िंदगी में हो सकते हैं अगर बंदा ठीक से उसका कंट्रोल ना करे या एहतियात ना बरते तो? अच्छा, अमूमन हम पेशेंट्स को ये बताते हैं कि शुगर एक बीमारी नहीं है, जी, ठीक है, लेकिन इसका डेफिनेशन में यही होता है कि बॉडी में शुगर के लेवल जो है वो ज़्यादा, हमने कहा भी कि नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये बताने के, बावर कराने के लिए कहते हैं ताकि वो उसको कंट्रोल कर सकें। इसका कंट्रोल होता है खुराक और वर्जिश से। अगर ये जी, कंट्रोल नहीं होती तो उसकी कुछ पेचीदगियाँ हैं जो पेशेंट्स के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। वो पेचीदगियाँ क्या है कि पेशेंट्स को की बिनाई, सबसे पहला जो असर होता है शुगर का वो आपकी बिनाई पे होता है, नज़र पे। दूसरा आपके गुर्दों पे होता है। गुर्दों के अलावा आपके हाथ पाँव में जो है ये पेशेंट्स शिकायत करते हैं कि उनके हाथ पाँव सुन्न होना शुरू होते हैं, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब ये वो होता है कि जिस्म में क्या हो जाता है, पेशेंट्स शिकायत करते हैं कि मेरे हाथ पाँव में ऐसे लगता है जैसे एड़ियाँ सी चढ़ रही हैं, जी, सुन्न होना शुरू होता है, हाथ पाँव सो ठंडे होना जाते शुरू हैं। होते हैं। उसमें ये जी, होता है कि आपकी जो नर्व्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं आपकी असाब है, ठीक है, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, ठीक है। वरेदे जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, उनको नुकसान पहुँचता है। ये वरेदे जो होती हैं, जैसे अब एक ट्रांसफार्मर है, उससे तारें निकल रही हैं, हाँ जी, वो तारें, वो ट्रांसफार्मर का काम होता है कि आपकी तारों के थ्रू बिजली को घर तक पहुँचाना। बिल्कुल, तो दिमाग भी हमारा समझे एक ट्रांसफार्मर है जो कि रीढ़ की हड्डी के थ्रू पीछे से या आपको निकाल रहा होता है, आपकी तारों को या नर्व्स को पूरे जिस्म तक फैलाता है, जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं हाथ को अपने हिला रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ। जी,
ڈائبٹیز میں یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ ان کو نقصان پہنچتا ہے، ہاں وقت جی کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں میں حساسیت کم ہو جاتی ہے، اور اگر یہ پیشنٹ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو آگے یہ ناسور بن جاتا ہے، تو زخم ہو گیا، ہاں جی وہ بھرے گا نہیں، بھرنے کی وجہ سے گینگرین اس کو ہم ناسور کہتے ہیں، کالا زخم بن گیا، جی جی تو اس صورت میں وہ ڈاکٹر کو کاٹتے ہیں اور اس کا پھر یہ ہوتا ہے ایمپوٹیشن ہوتی ہے، تو یہ پیشنٹ کی ڈسیبلٹی کی طرف اس کو لے جاتی ہے۔ اسی طرح ہارٹ اٹیک کا چانسز بڑھ جانا، اسٹروک کا بڑھ جانا، فالج کے اٹیک کا خطرہ بڑھ جانا، یہ ڈائبٹیز کی میجر کمپلیکیشنز میں آتا ہے۔ صحیح، یہ آپ نے بہت ہی اچھا ڈیفائن کیا ہے، اور مثالیں دے دے کے جس طرح ٹرانسفارمر، شکر اور لبلبا بہت ہی لیمن لینگویج میں بہت ہی ہیلپ فل تھا۔ اگلے سیکشن میں ہم چلتے ہیں پھر لائف سٹائل موڈیفکیشن کے بارے میں۔